Okay, beta, let's begin. Now, there is a very burning topic nowadays. Should there be privatization in India or not? Should there be privatization in India or not? इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओके, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी recently announced many ventures of India which are under the debt or which have become the burden for India will be sold, and government will acquire 6,50,000 crore from them. 6,50,000 करोड़ रुपए सरकार उनको बेच के कमाने वाली है. So this is called privatization. What is the meaning of the privatization? When your government institutions are converted into private one thing. Second, when the major portion of that is sold to a private player, जब उसका जो major portion है वो किसको बेच दिया जाए, किसी private player को बेच दिया जाए. This is called privatization. And third privatization is in the European and the American countries, where the government keep an eye on the country, where the government acts as a regulatory authority and work is done by the private companies. Elon Musk, he has got his own spaceship. He has got his own spaceship. It means they have the private companies to make for the rockets. To make for the rockets also, but in India rockets are made by ISRO only. You find that bullets and the guns are made by the government only, but in America, in the other countries, your weapons are prepared by the private companies. So some people are in favor, yes, there should be privatization. Now we want competition, we want jobs, we want better technology, but some people are against. They say we are a poor country. We cannot privatize all the things because poor people cannot pay for the services. For an example, metro is not affordable for the poor people. Is it? Isn't it? Is it? No, it is not, because poor people cannot travel in that. If you want to travel 50 km in the metro, you have to pay approximately 75 rupees for that. It means it is not for the poor people. If the things are being privatized by the government, poor people will suffer. Well, लोग तो सफर करेंगे. So this is the research. उस पर एक छोटी सी रिसर्च है कि हम किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं. Okay, क्या what are the points in favor of the privatization? What is means against, and after that we will give a solution also. Okay, so let's begin. The first and the foremost point is, class comfortable है ना? Yes, sir. Okay. The first and the foremost point is the assets will be utilized properly. अभी तुम क्या देखते हो कि इंडिया के अंदर जो एसेट्स हैं, जो हमारी संपत्ति है, उसका सही तरह से यूज नहीं हो रहा. Examples have also been given it. Train, buses, aeroplanes should be profitable, but they are not. एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ. For example, at the New Delhi railway station, there is a plenty of space. A museum can be made there. A museum can be made there, but this land is not utilized by the government. The land which is vacant today can earn crores of rupees for the government. So you find that जो हमारे natural resources हैं, जो हमारी संपत्तियां हैं, उनका क्या नहीं हो रहा, उनका utilization नहीं हो रहा है. हम कहते हैं जी इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड नेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन है, और हम कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया तो हमारे ट्रेन के अंदर ही सफर कर रहा है. तुम बात क्या कर रहे हो? लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी ट्रेन, तुम्हारी बसेस, ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो घाटे में चल रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब वो घाटे में चल रहा है तो वो बर्डन बन चुका है. किसके ऊपर बर्डन बन चुका है? सरकार की जेब के ऊपर. तो हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारी संपत्ति है, उनका सही तरह से यूज नहीं हो पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ऑयल फैक्ट्रीज, टेलीकॉम वेंचर्स हैव बिकम बर्डन फॉर द गवर्नमेंट. टॉक अबाउट BSNL, टॉक अबाउट MTNL. Okay, these are the telecom companies. Can they compare with the Airtel? Can they cope up with the modern technologies? आप देखो BSNL का किसी के पास है, किसी के पास कनेक्शन आज की डेट में कोई भी नहीं रखता BSNL का फोन. क्यों नहीं रखता? The reason behind this कि उसके नेटवर्क ही आपको नहीं मिलते, उनके पास कोई अपडेट ही नहीं है. तो कहने का मतलब है जो हमारे जो गवर्नमेंट वेंचर्स हैं, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, वो क्या बन चुकी हैं? दे हैव बिकम बर्डन ऑन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट पर भार बढ़ चुकी है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टू रन देम दे इन्वेस्ट मनी इन दैट.
उनमें क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, एंड दिस मनी कम्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर्स का पैसा बजाय देश की भलाई के लिए इन बूढ़ी हो चुकी कंपनियों को, बोझ बन चुकी कंपनियों को धकेलने में यूज किया जा रहा है। तो देखो दो नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान तो क्या हो रहा है कि ये जो चीजें हैं प्रॉपर इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, इनसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, हम नहीं कमा रहे। दूसरा, घाटे में चलिए इनको पैसा देना पड़ रहा है इनको चलाने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज, आर यू क्वाइट सीरियस? Are you means do you like it? Yes. Okay. Next is second is customer is uppermost for the private companies. जो हमारी कंपनीज होती हैं उनके लिए क्या है, हम टॉक अबाउट एयरटेल। एयरटेल वाले तुम एक बार बोलते हो योर नेटवर्क इज नॉट गुड in my area, I am going to port my number, so they will call you, sir, tell us what is your problem. Okay sir, okay, I will talk to the technical team, sir. If you have any problem, so you do not call the executive, you say I want to talk to the manager. If manager is not able to resolve your problem, then you start talking to the another manager. It means the customer is the most important thing for a company. कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर। क्या गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा है, तुम जाके गवर्नमेंट ऑफिस में कहते हो भाई मेरा ये काम कर दो, अच्छा पेपर रख दे बैठ जा। हेल्प डेस्क पर जाके हेल्प डेस्क ही खाली है, जो हेल्प डेस्क जहां पर लिखा हुआ है जिसका मतलब ही होता है हेल्प करना, तो वहां पर गए, यहाँ पर बंदा कौन है, फिर वहां पर कोई पास बैठा था, भाई यहाँ पर कोई है नहीं क्या, बोला अभी गया था 2 घंटे पहले। Have you understood? तो वहां पर कोई मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर की क्या करती हैं, वैल्यू करती हैं, और जब वो वैल्यू करती हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को नाराज नहीं करना चाहते, और उसके बदले में दे प्रोवाइड अस क्वालिटी सर्विसेज, हमें प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी सर्विसेज। टॉक अबाउट योर बोट ईयरफोन्स। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, यू गो टू द शोरूम एंड और यू गो टू द सर्विस सेंटर, give your earphones and you are given new hand to hand, आपको साथ के साथ वो नया दे देता है, सर कोई बात नहीं प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट द एप्पल? एप्पल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो आपका फोन साथ के साथ वो एक्सचेंज कर देंगे। व्हाई? बिकॉज कस्टमर ही उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, अभी मैं बताता हूं, पहले जब बीएसएनएल का सिर्फ फोन हुआ करता था लैंडलाइन वाला, तो बिल भर आपके यहाँ पर अगर लाइन खराब हो जाती थी ना, तो हो सकता है 12 दिन बाद लाइन शुरू हुआ करती थी फिर। Have you understood? तो प्राइवेट कंपनीज के लिए जो कस्टमर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको नाराज नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वर्ड इज कंपटीशन इंप्रूव्स क्वालिटी। As you can see, the new products are launched by companies every day with the excellent features at low cost. Let me talk about compact SUVs. Do you know about the compact SUVs? Compact SUVs होती है, एक तो आपकी होती है प्योर XUV, स्कॉर्पियो, ओके, योर फॉर्च्यूनर, वो जो आपकी है वो आपकी प्योर SUVs होती हैं, बट आजकल कॉम्पैक्ट SUVs आ चुकी हैं, जैसे कि ब्रेजा, टाटा नेक्सन, ये कॉम्पैक्ट SUVs है। उसका कॉम्पैक्ट का मतलब भी कुछ होता है कि मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। कहने का मतलब वो SUVs से तो छोटी है, लेकिन SUVs के सारे गुण उसमें, कहने का मतलब वो है। तुम देखो, एक कंपनी आई थी सबसे पहले, वो थी फोर्ड इकोस्पोर्ट, अपनी गाड़ी लेकर के आई, और आज की डेट में हर कंपनी ने एक कॉम्पैक्ट SUV बना दिया है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 लाख रुपीज टू 15 लाख रुपीज। 8 लाख से 15 लाख में आपको मिल जाएगी, और आपको बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर मिलेंगी। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो आपस में कंपटीशन करती हैं, वो जो अब कंपटीशन जीतेगा कौन? कंपटीशन वही जीतेगा जिसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एफिशिएंट होगी, नंबर 1, जिसकी टेक्नोलॉजी चलने वाली है हम वही खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल आप सके Asus का लैपटॉप लोगे, डेल का लोगे, तो आप लोगे मैं डेल का लूंगा सर, क्योंकि Asus पर मुझे यकीन नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? तो उनकी मार्केट में पैठ बनानी पड़ती है उनको, क्योंकि लोग उनका जो प्रोडक्ट है वो तो लेती है, प्लस में अपने दोस्त को भी रिकमेंड करते हैं। तो एक कंपटीशन क्रिएट होता, उस कंपटीशन को जीतने के लिए एफिशिएंसी इज डिलीवर्ड, एफिशिएंसी इज डिलीवर्ड, मतलब कि बेहतरीन चीजें आपको डिलीवर की जाती हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू, अभी SUV 700 आई है जिसके हैंडल में सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर आपने हैंडल से हाथ हटा लिया तो आपको सिग्नल मिलेगा कि आपने अपना हाथ हटा लिया। सीट बेल्ट के लिए भी सिग्नल है। अब देखो, इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी इज गिवन टू यू इन 14 लाख रुपीज। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। और एक चीज बताता हूं तुम्हें, अब इंडिया के अंदर मींस वी डू नॉट हैव गॉट द गुड मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्लीज डू नॉट माइंड इट, बट इन जर्मनी वी हैव गॉट, जर्मनी के अंदर तो बहुत अच्छे रिफाइंड इंजीनियर्स हमारे पास। तो इन प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया कि सस्ती टेक्नोलॉजी लानी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी लानी है, बिकॉज वी हैव टू विन द कंपटीशन।
तो आप यकीन मानिएगा महिंद्रा ने जाकर जर्मनी से अपनी कार डिजाइन करा ली। गवर्नमेंट वाले करेंगे क्या ऐसे? भाई ये आरओ काम नहीं कर रहा होगा भाई, कर लेगा। आई बात समझ में? नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, वो ये नहीं कहेंगे कि जल्दी से इसको रिपेयर किया कराया जाए। लोगों को परेशानी हो रही है, सर के घर में पानी नहीं आ रहा, सर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सर हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, बोले आ जाएगा, जल्दी आएगा से। गॉट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने तो छोड़ दिया, पहुंच जाएगा। तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के प्रति, ठीक है। लेकिन अगर यही पानी एक प्राइवेट कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही होती, अगर यही पानी एक हमें प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करे तो व्हाट हैपन, क्या होता कि भाई वो साथ के साथ हमारे घर आते, सर दिखाओ आपके पानी यहाँ कैसे नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल बिजली एक प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये टाटा की लाइन जा रही है, ये रिलायंस की लाइन जा रही है, अगर तुमने सही नहीं दी ना बिजली तो मैं रिलायंस वाले से ले लूंगा। Have you understood? तो जब कंपटीशन होगा तो क्वालिटी सुधर जाती है, तो वो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं आपस में, और कंपटीशन को जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी और ज्यादा से ज्यादा बेहतर सर्विस हमको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डेटा प्लान्स के बारे में बात कर लो। आज की डेट में तुम, मुझे याद है हमारे बस का नहीं था डेटा प्लान लेना, मतलब एयरटेल वाले इतनी बुरी तरह से जेब काटते थे कि 365 रुपए में 1 GB डेटा देते थे, 3G 365 का, मैं खुद में गया हूं, ठीक है, 365 का 1 GB डेटा देते थे एयरटेल वाले 3G। रिलायंस वालों ने क्या किया कि इंडिया में तो डेटा की मार ही मार है, इंडिया में तो बहुत बिकने वाला है, जियो सबसे सस्ता डेटा लेकर गया, एंड टुडे वी हैव गॉट चीपेस्ट डेटा इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डेटा मिलता है। इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है इंडिया के अंदर ये? बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन अमंग द कंपनीज के कौन बेहतर डेटा देता है। अब इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा, एयरटेल ने तो ये बोल दिया वी हैव टू ब्रिंग द कंप्लेन फिगर एट जीरो पे लेकर आऊंगी भाई कंप्लेन का फिगर में। अब इससे ज्यादा मेहनत कोई कंपनी कर सकती है क्या? हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन। लीडिंग कंपनीज स्पेंड अ lot of money on the research and development which leads towards the efficiency in the products or with the great production। मतलब ये थोड़ा इधर उधर हो गया तो मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं क्या लिखा, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। लीडिंग अब एक्चुअल में होता क्या है, जो लीडिंग कंपनीज होती हैं, व्हाट आर द लीडिंग कंपनीज? एप्पल इज अ लीडिंग कंपनी, सैमसंग इज अ लीडिंग कंपनी, वीवो इज अ लीडिंग कंपनी। तो देखो लीडिंग कंपनीज में भी ना 3-4 कैटेगरीज होती है। एक होती है टॉप नॉच कंपनी, जैसे एप्पल। सबसे पहले 3 कैमरे किस में आए थे? एप्पल में आए थे। उसके बाद में क्या हुआ, आज की डेट में तुम क्या देखो, सबसे पहले टच का फोन किसने बनाया था? एप्पल ने बनाया था। सबसे पहले टच का फोन एप्पल ने बनाया था। हैव यू अंडरस्टूड? अब आज की डेट में तुम देखो एप्पल के प्राइस में सेम क्वालिटी के कैमरास वाले फोन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज जो कंपनीज होती हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, और रिसर्च और डेवलपमेंट करता कौन है? इट इज डन बाय इंजीनियर्स एंड द साइंटिस्ट। अगर प्राइवेट कंपनीज आएंगी, दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड द एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया विल गेट एम्प्लॉयमेंट। जो आज हिंदुस्तान के लोग बाहर जा रहे हैं, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन कंट्री, खुद की कंट्री मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन करो कि आज जो डेल का लैपटॉप बाहर से डिजाइन होकर के आ रहा है, जो इंडियन कार्स जर्मनी से डिजाइन होकर के आ रही हैं, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ये कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्च करेंगी, और वो सारा का सारा पैसा एक तो इंडिया पर खर्च होगा, वो मिलेगा किसको? वो मिलेगा हमारे इंजीनियर्स को और साइंटिस्ट को। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट वर्ड इज न्यू स्पेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नेक्स्ट पॉइंट, कि जो एक न्यू स्पेस, एक नई दुनिया खुलने वाली है अपॉर्चुनिटीज की इन द प्राइवेट सेक्टर के अंदर। यहां तक ठीक लगा? आर यू एंजॉयिंग? चलो यहां पर देखना हम शुरू करते हैं कि न्यू स्पेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया ने क्या किया है, प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया कि लगाओ इसमें पैसा। जैसे कि उड़ने वाली कार, ये अपने आप में एक नया सेक्टर है। दुनिया में जाओ भाई, ऊपर यूनिवर्स में घूम के आओ, एक नया सेक्टर है अपने आप में। भाई चंद्रमा पर बना रही क्या? होटल, ये एक नया सेक्टर है, अपनी तरह का एक नया सेक्टर बन चुका है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, यू विल नॉट बिलीव
कि ऐसी कंपनीज आर देयर विच आर गोइंग टू इंस्टॉल सोलर प्लांट्स इन यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सोलर प्लांट लगने वाला है। कॉलोनीज विल आल्सो बी मेड, मार्स पर कॉलोनी का काम शुरू हो चुका है, अभी वहां तक नहीं गया, अभी इंडिया में बुकिंग हो रही है घर वहां से। ओके, अब ये करेगा कौन? इट विल नॉट बी डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, इट विल बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं, देखो हो क्या रहा है। स्पेस ट्रैवलिंग अ न्यू प्लेथोरा ऑफ मेकिंग मनी। एक बात छोटी सी सोच के देखना, एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क इज एन अमेरिकन पर्सन, और वो एक सीट कितने की बेच रहा है पता तुम्हें? 2 लाख अमेरिकन डॉलर। 2 लाख अमेरिकन डॉलर में एक बंदे को भेजेगा स्पेस में ट्रेवल करने के लिए, और पता है कितनी मिनट लगेंगी? सिर्फ 30-35 मिनट में, 1 घंटे में तो होके वापस भी आ जाएगा वो। 2 लाख अमेरिकन डॉलर खर्च करेगा, और सुन लो मेरी बात, 400 लोग तो ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है, किसकी? जेफ बेजोस की। 400 अमीर लोगों ने तो दे भी दिए पैसे कि भाई भेजो जल्दी हमें, और एक साल में ये कम से कम 50 से 100 लोगों को भेजा करेंगे। नाउ थिंक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में सोचो कि इतना मोटा पैसा अमेरिका के पास आएगा। दिस मनी विल कम टू द एलन मस्क, जेफ बेजोस एंड द ओनर ऑफ वर्जिन एंड बोइंग। ये दोनों कंपनी भी तैयारियां कर रही है, वर्जिन और बोइंग भी जाने वाली है कहां पर? स्पेस में। अगर मान लो एक साल में तीनों चारों कंपनी ने मिलकर 400 लोगों को स्पेस घुमा लाए, सो हाउ मच मनी दे विल अर्न एंड हाउ मच टैक्स दे विल पे टू देयर ओन कंट्री। अब कितना सारा पैसा ये अपने देश को कमा के दे देंगे भाई, because they have allowed private sector in this sector। इस सेक्टर में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया, करो भाई तुम। उसके आगे देखो, hotels and colonies will also be developed in future on Mars and Moon। बुरा मत मान, शादी करने लोग मून पे जाया करेंगे, सच्ची बात बता रहा हूं मैं। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी मून पर, ठीक है, और जो तुम्हारे मन में चल रहा वो नहीं। Okay, hotels and the colonies will also be developed in future on Mars and Moon। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मार्स है और जो हमारा मून है वहां पर कॉलोनीज बना दी जाएंगी, और कॉलोनीज में जाकर के लोग अपना टाइम बिता के आया करेंगे। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो, तुम्हें लगता है कि उन्हें स्विट्जरलैंड नहीं देखा होगा, स्विट्जरलैंड तो यूं घूम के आ जाते हैं। अमेरिका ने देखा, पर उनके लिए नया एडवेंचर, उनके लिए नई दुनिया है। क्या? ये भाई हमारा यूनिवर्स को घूमना। गॉट इट। उसके बाद देखो, सोलर प्लांट इन यूनिवर्स। अगर मैं थोड़ा सा समझा दूं ना तो तुम जान करके ना दंग रह जाओगे कि सोलर प्लांट क्या करने वाला। लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज आवर सन। ओके, अब ये जो सन है हमारी, दिस इज ओजोन लेयर। ओके, सो ये जो ओजोन लेयर पर पेनिट्रेट करके आता है, इट मींस वी गेट लेस हीट इन कंपैरिजन ऑफ दिस एरिया। ओके, इसके कंपैरिजन में तो हमें कम मिलती है ना हीट। अगर मान लो मैं पृथ्वी के बाहर ही एक सोलर प्लांट लगा देता हूं, 2 बेनिफिट्स विल बी देयर। एक, अरे भाई जब सूरज इधर रहेगा तो 12 घंटे अपने को इस सोलर प्लांट को यहां रखूंगा, जब ये उधर चला जाएगा तो 12 घंटे उधर रखूंगा। इट मींस पृथ्वी पर ही सूर्य उगता छिपता है, यूनिवर्स में। आगे बात समझ ली? तो 24 के 24 घंटे में क्या कर पाऊंगा? 24 के 24 घंटे मेरा सोलर प्लांट काम करेगा। कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा? अब इसका एक फायदा, सर जमीन पे कैसे पहुंचेगी? तार तो टूट जाएगी। नहीं, मैं बताता हूं। यहां पर ये सोलर प्लांट लगा होगा, इस सोलर प्लांट से इंफ्रारेड पैदा करी जाएंगी। ओके, जो आपका इंफ्रारेड होंगी वो क्या करी जाएंगी? सब माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव के अंदर क्या होती है? इंफ्रारेड होती है, वो हीट होती है उनके बहुत ज्यादा, ठीक है। वो जमीन पर आ जाएंगी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। मान लो यहाँ एक छोटा सोलर पावर प्लांट लगा होगा, ठीक है, इसको अब मान लो ये 24 के 24 घंटे इधर होगा ये यहीं पर भेज देगा अपनी इंफ्रारेड को, ठीक है। अब यहां पर देखो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। सर बहुत अच्छी बात है। इसके भी आगे की बात सुन लो। इसके आगे की बात यह है कि हमारे सैनिकों को क्या चाहिए। आज हम पर चाइना ने बोल दिया कि भाई हम तुम्हें परेशान करने वाले हैं, एंड वी डोंट हैव, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बर्न पेट्रोल और डीजल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जनरेटर्स। अरे जरूरत नहीं है, यहां पर अपना पूरा इक्विपमेंट लेकर के जाएंगे
और इस प्लांट के साथ में क्या करेंगे, एक करके अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए यहां पर इंफ्रारेड्स आ जाएंगी हमारी, और देखो बिना पैसा खर्च करे हुए हमारे सैनिकों के पास क्या पहुंच गई, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। गॉट द पॉइंट। अब ये देखो, ये भविष्य के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर प्राइवेट कंपनीज ऐसा कर रही हैं तो इनके देश और कितने अमीर हो जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो प्राइवेट कंपनी से ये बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट है बेटा, नो वर्क नो रिस्क ऑफिसर्स एटीट्यूड। देखो मैं बताता हूं, जो ऑफिसर बन जाते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एक्चुअल में होता क्या है, जब वो कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो उस डिसीजन को लेने से पहले उन्हें बहुत सारे उनसे फेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जब वो बहुत सारे फेजेस से गुजरते हैं तो एक्चुअल में होता क्या, उनसे अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उन पर एफआईआर कर दी जाती है, उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या आप आरटीआई के जरिए भी आज की डेट में उनको परेशान कर सकते हो। हालांकि मैं थोड़ा गलत हूं, यहां पर आरटीआई लगा के उनको परेशान कर सकते हो। तो पर ऑफिसर्स क्या करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं, मैं तो 5 साल को आया हूं यहां भाई, मुझे तो 5 साल ही तो इसका हेड रहना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, थिंग्स मतलब जैसी चल रही है उनको वैसे ही चलने दो, अब जो आगे आएगा वो देख लेगा। फिर ये क्या करेगा, यहां 5 साल पोस्टिंग निकालने के बाद फिर अगली जगह पर जाएगा, फिर अगली, पूरी सर्विस यूं ही निकाल देता है ये। पता क्यों? क्योंकि इसको मालूम है हटाने वाला तो कोई है नहीं। नंबर 2 क्या है, मैं काम करूंगा, कभी कोई मुझसे एफआईआर हो रही है, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मैं क्यों रिस्क लूं? 5 साल यहां हूं, 5 साल भाई, तो 5 साल बाद तुम्हारा भाई कहीं और पर होगा। अंडरस्टूड? तो वो रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी, इसको बोलते हैं नो रिस्क नो, मतलब नो वर्क नो रिस्क। आगे बात समझ में? कांग्रेस के साथ में क्या हुआ था, जब कांग्रेस की मनमोहन की सरकार थी, लास्ट में आते आते उन्होंने क्या सारे काम करने बंद कर दिए थे, तो उन्होंने क्या सोच लिया था, नो वर्क नो रिस्क। कुछ काम करोगे, तुम्हारे मंत्री करप्शन करेंगे, तुम्हारी और बदनामी होगी समाज के अंदर, तुम्हें और भी वोट कम मिलेंगे। तो ऑफिसर्स का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग रिक्रूटमेंट मेथड until the posts are kept vacant resulted in loss. For an example, you need to understand. अब आपको क्या करना था, आपको एक डोमिसाइल बनवाना, इट मींस you want to get a domicile made, मतलब आप बनवाना चाहते हैं एक डोमिसाइल, बट वहां पर जो क्लर्क है, द क्लर्क हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड द न्यू क्लर्क इज नॉट देयर, न्यू क्लर्क वहां पर है नहीं। गवर्नमेंट को पहले लेटर लिखेंगे, मींस देयर इज अ सीट ऑफ अ क्लर्क इज वेकेंट। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल राइट टू अनदर डिपार्टमेंट, किसी और डिपार्टमेंट को लिखेगी, मान लो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लिखेगी या किसी और डिपार्टमेंट को लिखेगी, फिर वहां से क्या आएगा, वहां पर एक एम्प्लॉय आएगा, और जब तक वो आता है तब तक कितने लोगों के काम खराब हो जाते हैं, सरकार का कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के अंदर क्या है, प्राइवेट कंपनीज के अंदर ओके, आज अगर आपने जॉब छोड़ दी, यू हैव लेफ्ट द जॉब, नेक्स्ट डे ऑन द naukri.com means they publish the vacancy and within 2 days there is a more efficient person start working on the same post, आगे बात समझ में, उसी पोस्ट पर एक नया बंदा आ जाता है, वो काम भी करना शुरू कर देता है। इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत ही तेज होता है, बट इन द गवर्नमेंट ये थोड़ा मुश्किल काम है, वहां पर पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मतलब देखो, अभी तुम देखो हरियाणा पुलिस का निकला फॉर्म निकले जी, सबसे पहले फॉर्म निकलने के बाद में फिर उनके फिजिकल हुए, फिजिकल के फॉर एग्जांपल उनके बाद उनका पेपर लिया, पेपर लीक हो गया, 3 महीने बाद फिर पेपर होगा, वो भी लीक हो गया, तो फिर और 3 महीने चले गए। अब तुम बताओ, जो 1500 पुलिस वाले चाहिए वो 3 साल तक मिले ही नहीं, वो कितना क्राइम रोक सकते थे, क्या वो क्राइम रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो रिक्रूटमेंट जो है ना, बड़ी मुश्किल और बड़ी पेचीदा है गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर, इसलिए सरकार का बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट इज चेंज टेक्स टाइम, adoption of a new technology takes time, a particular method to do it which goes through many ministries। देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूं ये सारी बातें, देखो नीड टू अंडरस्टैंड कि मान लो जैसे हमने क्या कहा, महिंद्रा को लगा कि तुम कंपटीशन से बाहर हो रहे हो, तुम्हारे पास कोई अच्छी एसयूवी नहीं है, उन्होंने क्या किया, वो सीधा अपने सारे रिसोर्सेज मिलाए और उन्होंने देखा कि भाई इंडिया ने जगुआर कंपनी खरीद ली, एंड आफ्टर परचेजिंग दिस दे आर डूइंग मिरेकलस इन द फील्ड ऑफ कार्स के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं। तुम क्या करो, तुम जर्मन इंजीनियर्स को हायर करो, जर्मन की कंपनीज की सहायता लो। उन्होंने रातों रात ये कर दिखाया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी कहीं से लेनी है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करानी है, सो यू हैव टू राइट टू द मिनिस्ट्री।
मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा, मिनिस्ट्री इसको अप्रूव करेगी, देन अ टेंडर विल बी ओपन, फिर उसके बाद टेंडर ओपन किया जाएगा, देन देयर विल बी अ बिड और देन देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग द कंपनीज बिड में आएंगी, जो कंपनी अच्छा देगी, सस्ता देगी, फिर उसके बाद उसको पास किया जाएगा। आफ्टर दैट कंपनी विल डिलीवर दैट टेक्नोलॉजी। हाउ मच टाइम हैज बीन टेकन, कितना टाइम निकल गया इसके अंदर। अब तुम बताओ मुझे एक बात, जो सरकारी स्कूल में बच्चा है उसको पीने को पानी नहीं मिल रहा, फ्रिज खराब पड़ा हुआ है वहां पर, वो बदला ही नहीं जा रहा, क्यों बदला जा रहा? पहले प्रिंसिपल लिखेगा, एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर में लिखेगा किसी और को, आफ्टर दैट विल बी सैंक्शन्ड एंड विल रीच टू द स्कूल। इतने में 2 महीने निकले, इतने में गर्मी चली गई, जब अगली बार तक ये बहुत खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर। नेक्स्ट, you need to understand permanency of job does not make government employees accountable to the customers of the people. Talk about the government schools, colleges. आगे बात समझ में? And our government spend 20,000 rupees per student in India. इंडिया में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करता हूँ, बट गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड्स फॉर यू। गवर्नमेंट तुम्हारे लिए बहुत स्पेंड करती है, 20,000 रुपए पर स्टूडेंट वो खर्च कर रही है, चाहे तुम्हें पता है या नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी people are not getting benefit, लोगों को बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, it is not becoming fruitful for country, अरे फ्रूटफुल बन ही नहीं पा रहा है नेशन के लिए। तुम बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर बच्चा फेल हो पास हो से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो ठीक है। तुम मुझे बताओ कि भाई जो कॉलेज में बच्चे यूं ही घूम रहे होते हैं, उनकी कोई पढ़ाई करनी है, लेक्चर जो हमारे प्रोफेसर है वो रूम में बैठे हुए बुला लाए तो पढ़ा दिया, नहीं तो नहीं पढ़ाया, तो वो अकाउंटेबल नहीं है। उनके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा हुआ उनसे कहने वाला कि भाई तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उनकी जॉब में परमानेंसी है, मतलब कि वो एक तरीके से जॉब में आए हैं, अगर बाहर भी निकलेंगे अ प्रोसेस विल बी फॉलोड, भाई प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सो दे हैव गॉट परमानेंसी, उनको परमानेंसी मिली हुई है, एंड दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट, उसका वो गलत फायदा उठाते हैं। तुम जाओ किसी क्लर्क से कह दो भाई मेरा ये काम, एक बार मैं अभी छोटी सी, आई वुड लाइक टू टेल अ स्मॉल इंसिडेंट। I was in Tehsil, okay? This is called administration, administrative block of Ballabgarh. So मैं वहां पर था, तो एक लड़के को अपने कुछ काम कराना था, तो एक क्लर्क कह रहा उसके पास जाओ, फिर दूसरा क्लर्क कह रहा उसके पास जाओ, तीसरा बोल रहा है ये, लास्ट में बोला मेरा काम करना है तो कर दो, तुम्हें मना कर दो, ठीक है। अब कोई भी मान लो, होना चाहिए ना तुम्हें अपनी सीट पर, अगर ये तुम्हारा काम है तो तुम इसे टाल क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं टालना चाहिए काम। सो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं हमारे प्रति, उनके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बैठी हुई कि अगर इस लड़के ने लाइसेंस के कागज जमा करा दिए और सारे कागज एप्रोप्रिएट हैं, इसको 15 दिन में यू विल हैव टू गिव लाइसेंस, 15 दिन में तुम्हें इसको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? ये एसडीएम के लिए रूल होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई फाइल आई है, सो यू हैव टू solve that case or you have to do all the formalities related to that file within 5 days। 5 दिन में जितनी भी करना है फाइल के अंदर जो तुम्हारा काम है करके दो तुम। ये दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, हम चक्कर लगाते रहते हैं, तभी तो हम क्या करते हैं, लोगों को पैसे दे देते हैं मीडिएटर्स को, ओके, और वो हमारा काम करा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टैक्स पेयर्स मनी इज यूज्ड टू रन अंडर दैट वेंचर्स। देखो मैंने मान लो 1 लाख टैक्स दिया 1 साल के अंदर, मैं दुआ करता हूं 2 लाख दूं, ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा ये तो दूंगा समझे? तो मैं चाहता हूं मैं 2 लाख रुपए मैंने टैक्स दिया, वो टैक्स मैं क्या चाहता हूं इस बच्चे की पढ़ाई पर यूज हो, लेकिन वो यूज हो कहां रहा है? वो यूज हो रहा है भाई, ये जो हमारे, तुमने सुना ना एयर इंडिया, सुना है भाई, इंडियन एयरलाइंस। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारी इतने घाटे में चल रही है कि पिछले 10-15 साल से सरकार इसको पैसे दे रही है, चलाओ भाई तुम चलाओ इसको, तुम चलाओ इसको। तो ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है ये इन चीजों पर क्यों वेस्ट हो भाई? अगर मान लो इतना, अगर साल में हमने 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया इन कंपनीज को दे दिया, ये जो घाटे में चल रही हैं, तो छोटी सी बात है, इतने में तो कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने कॉलेज बन सकते हैं, कितने ब्रिजेस बन सकते हैं। फिर टैक्स पेयर्स की मनी बर्बाद क्यों हुई है? हम नहीं चाहते ये बर्बाद हो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट इज, आई थिंक सम स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड यॉर्निंग, मुझे लग रहा है मैं तो पूरी एनर्जी लगा रहा हूं अभी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अभी फेवर में 2 पॉइंट और बचते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, मोर सर्विसेज, मोर टैक्सेस, मोर मनी फॉर सोशल वर्क, या यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो
मैंने बताया इलॉन मस्क कितना सारा पैसा कमा लेगा, बहुत सारा पैसा अपने देश को देगा। जितना ज्यादा पैसा उसके देश के पास होगा, उसका देश उतना ही ज्यादा पैसा सोशल वेलफेयर में खर्च करेगा। हमारी सरकार के पास जितना आज बजट है उसको डबल कर दिया जाए तो जो हम पैसा सरकार से आज हमको मिल रहा है, जितने ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स और स्कूल बन रहे हैं, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देने से बहुत सारा टैक्स भी हमको मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द सोशल वेलफेयर देन द इंडस्ट्रीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सरकार को क्या चाहिए? सरकार ध्यान दे सोशल वेलफेयर के ऊपर, SOCIAL, ठीक है। सरकार ध्यान दे सोशल वेलफेयर के ऊपर, बजाय इन कंपनियों को चलाने के, बजाय बसेस पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, ट्रेन पर, इन सब पर ध्यान देने की बजाय सरकार क्या करे? वो ज्यादा फोकस करे शिक्षा के ऊपर, वो ज्यादा फोकस करे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर रेलवे को चलाना है ना सरकार को, सो रेलवे को पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, फॉर रनिंग दैट डिपार्टमेंट, उसको ऑफिसर्स लेने पड़ते हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट करने पड़ते हैं, उनकी सैलरी बनानी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट से रेलवे हो गया, फिर ऐसे ही आयरन डिपार्टमेंट हो गया, कोल डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया। इतने सारे डिपार्टमेंट सरकार के पास हैं, तो सरकार होगी बल्कि। कैसी होगी सरकार? बल्कि। अब जब बल्कि शरीर है, मान लो मैंने खाई 4 रोटी, तो मेरी रोटी जल्दी पच जाएंगी पतले की अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि मेरे घुटनों को तो ज्यादा वजन झेलना, भाई मेरा सिस्टम ही बड़ा हो गया ना। तो जब सरकार बल्कि हो जाती है, तो उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और जब उसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक भारी चीज को अगर तुम पुश करोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? तो कहने का मतलब, अगर इतनी बल्कि सरकार है, इतने सारे डिपार्टमेंट है आपकी सरकार में, इफ यू हैव टू रन दैट गवर्नमेंट, यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सरकार का फोकस क्या होना चाहिए? सरकार का फोकस होना चाहिए सोशल वेलफेयर पर। सरकार का फोकस क्या होना चाहिए कि सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को काम दे दिया, लेकिन सरकार की नजर रखनी है कि तुम कुछ गलत ना कर दो। गॉट इट? आगे बात समझ में? सो दीज आर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेंस्ट। अब इसके अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। अब उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। शुड आई बिगिन? शैल आई बिगिन? Shall we begin? Yes, sir. पानी पीना चाहता है? Somebody would like to what? No. Okay. You. Yes. You can ask counter question. पूछ सकता है counter question if you have. Okay. Let's begin. धीरे-धीरे तब तक शुरू करते हैं। हाँ? So beta, here the what is the prime motto of a private companies to earn profit? एक प्राइवेट कंपनी आएगी, उसका सिर्फ एक ही मोटो होता है, the only motto of a private company is to earn more and more money. उसका एक काम होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है। अब वो उनको तुम्हारी भलाई से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी होता रहे, वो आपको मेट्रो में तभी ट्रेवल करने देंगे जब आप जिसे जो किराया मांगा गया है आप उसको दे दो, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड। लेकिन आप गवर्नमेंट में देखो, जो ट्रेन होती है, जो हमारी इंडियन रेलवे है, वो बल्लभगढ़ से दिल्ली आपको 15 रुपए में ले जाती है, लेकिन जो मेट्रो है वो आपको 50 रुपए में लेके जाती है। इट मींस 5 to 6 टाइम्स मोर, 5 से 6 गुना ज्यादा महंगी है मेट्रो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इंडिया के अंदर क्या है, जो कंपनीज हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने आएंगी, हमारी भलाई करने तो नहीं आएंगी। अब तुम इंडिया की पॉपुलेशन को देखो, इंडिया देश को देखो ना, यहां पर कैसे लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ईदर पुअर और मीडियोकर। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग या तो गरीब हैं या वो मिडिल क्लास के हैं। अगर सब जगह कंपनीज ही कंपनीज आएगी, प्राइवेट कंपनीज आएगी, तो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, और इन गरीब और मीडियोकर फैमिलीज का क्या होगा? इन्हें तो भाई बहुत सफर करना पड़ेगा। कितनी प्रॉब्लम्स इनको होने वाली हैं अगर हर चीज प्राइवेट हो जाती है या चीजें महंगी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, अगर यार रेल में आज तुम जाओ, अगर तुम रेल में सफर करना चाहते हो, अगर एक नॉर्मल डिब्बे के अंदर, सो आप 1000 किलोमीटर की जर्नी भी यू कैन ट्रेवल इन 500 रुपीज, 400 रुपीज। But if I talk about the private trains, if I talk about the bullet train, for 1000 kilometer you will have to spend 5000 rupees, which is 5 times more than Indian Railway. 5 गुना ज्यादा है इंडियन रेलवे की अपेक्षा में, तो चीजें महंगी होगी। टॉक अबाउट एजुकेशन, हल्के से हल्का स्कूल भी 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 4000 रुपए चार्ज कर रहा है आज की डेट में मिनिमम।
ठीक है, मैक्सिमम 15,000 रुपीज आर बीइंग चार्ज्ड। तो जब तुम सोच के देखो, जब ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया, एजुकेशन भी देखो कितनी महंगी होगी, नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब तो हम फिर भी डंगी डाल लेते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले तो ये नहीं करने देंगे हमको, ठीक है। अब देखो, अब देश को जरा समझ के देखो, आपके देश में लोग कैसे हैं, लोग आपके देश में गरीब हैं, लेकिन आपके देश में चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अब दोनों के बीच में देखो अंतर बढ़ता जा रहा है, लोगों में कितनी परेशानी होगी लोगों को। हो सकता है देश में कुछ लोग तो बिगर खाने के मर जाएं, बिगर फैसिलिटीज के ही मर जाएं। तो व्हाट इज द प्राइम पर्पस ऑफ द प्राइवेट कंपनीज? टू अर्न मनी, नॉट सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, the countries which have adopted privatization have less population, but contrary to it, India has huge population which is poor and the middle class and need upliftment which will not be done by the private companies. अब तुम्हें एक बात को समझनी पड़ेगी, the privatization, this concept is of privatization belongs to European and American countries. वहां पर ये कंसेप्ट, अच्छा वहां पर ये कंसेप्ट क्यों है, इसको दो तीन बातें तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, उनके देश के अंदर जो शिक्षा है वो बिल्कुल अलग तरह की है बेटा। उनके देश के अंदर ऐसी शिक्षा है जो उन बच्चों को इनोवेटिव बना देती है, उन बच्चों को बेहतरीन बना देती है। अब हमारे देश की जो शिक्षा है वो ऐसी अभी नहीं है, हम अभी बिजनेसमैन बनने की अवस्था में नहीं है। जब तो देखो हम जॉब के लिए भागते हैं, वो लोग किसके लिए भागते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भागते हैं। तुम देखो फेसबुक क्या था, फेसबुक वाज अ स्टार्टअप ऑफ अ पर्सन। गूगल क्या था, वाज अ स्टार्टअप ऑफ अ पर्सन। स्पेसएक्स क्या है, स्टार्टअप ऑफ अ पर्सन। हाइपरलूप ट्रेन क्या है, स्टार्टअप ऑफ अ पर्सन। हाइपरलूप ट्रेन है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन चलेगी, ये बहुत तेज, ठीक है। तो वहां पर देखो बच्चे और लोग इंटेलिजेंट है हमारी अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उनको एंटरप्रेन्योर बनाती है, उनको बिजनेसमैन बनाती है, उनको इनोवेटर्स बनाती है। क्या इंडिया में हो रहा है अभी? नहीं हो रहा ना, मतलब अप टू एन एक्सटेंट, मतलब ऑन अ लोअर मींस यू कैन से इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी बिगिनिंग हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अब तुम यहां पर देखो, एक फैक्टर तो ये है, अब दूसरा फैक्टर ये देखो यार, ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन कितनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन कर लो तो 7-8 ऑस्ट्रेलिया है वहां। आर यू गेटिंग? तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस भारी पॉपुलेशन को हम प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है इनको जरूरत है सपोर्ट की, और वो सपोर्ट कौन देता है, वो सरकार देती है। हालांकि जब भी मिलेगा प्राइवेटाइजेशन के दौर में भी, लेकिन प्राइवेट बताऊंगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी आगे के प्राइवेट, पैसा तो आएगा लेकिन और भी कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आगे देखो, ड्यूरिंग कोरोना वायरस प्राइवेट हॉस्पिटल्स रॉब्ड पीपल। आगे बात समझ, भाई फैसिलिटीज मिलेंगी, सरकार को पैसा भी मिलेगा, लेकिन तुम बताओ कोरोना के दौरान एक दिन का 50-50 हजार लिया हॉस्पिटल्स ने, नहीं लिया। तो जब ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी तो क्या होगा, देश तो फंस जाएगा भाई। दूसरा देखो, स्कूल्स हैव आल्सो नॉट रिमिटेड फी, स्कूलों ने भी अपनी फीस माफ नहीं करी। पेरेंट्स के पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन स्कूलों ने भी क्या किया, भाई हमें अपनी फी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें अपना जो वो चीज तुम्हें देंगे उसका पैसा लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या हुआ, 10 रुपए में बच्चा पढ़ के घर आ जाता है, इतना तो वो कभी भी अफोर्ड कर लेता है। आगे ने बात समझ में? तो अगर प्राइवेट हाथों में चीजें चली जाएगी तो ऐसी चीजें होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेट्स अंडरस्टैंड, उसके बाद की बातें समझते हैं। वी हैव अंडरस्टूड दिस। चलो इसके आगे देखो, आगे क्या हो रहा है इसमें देखो, लैक्स लॉ एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब चलो मैं तुम्हें चाइना की छोटी सी बात बताता हूं। मींस एज वी हैव गॉट ऑनलाइन पोर्टल्स ऑफ एजुकेशन लाइक वेदांतु, बायजूस, क्लासमेट एक्सेट्रा। ओके, इन द सेम थिंग्स आर इन चाइना आल्सो, वो चाइना में भी है। अब चाइना को देखा कि यार इन्हें तो बिजनेस ही बना डाला, बच्चों को एक तरह से ठगा जा रहा है ट्यूशन के नाम पे। उन्होंने कहा कि जितनी भी ये कंपनीज हैं और शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इनको हटाओ वहां से। अच्छा, शेयर मार्केट में अगर कंपनी लिस्टेड होती है तो कंपनी को बहुत पैसा मिलता है शेयर मार्केट से, वो तुम समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। उसने और क्या कहा, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट इनमें आ रहा है, मतलब कोई अमेरिका कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है इनमें, कोई जापान की कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ये तो प्रॉफिटेबल हाउस बन चुके हैं। ये पढ़ा कहां नहीं, ये तो भाई जस्ट पैसा कमा रहे हैं। उससे नुकसान क्या होगा, पैसा कमाना अच्छी बात है, शिक्षा दे रही, उससे एक चीज की प्रॉब्लम हो जाती है, ये कंपनी बन जाती है जाइंट, JAINT।
इतनी विशाल कंपनी बन जाती हैं, जो छोटी कंपनीज होती है ना, स्मॉल कंपनीज, ये उनको आगे नहीं बढ़ने देती, ये उनको आगे नहीं बढ़ने देती। मैं एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। रिलायंस वालों के पास बहुत पैसा, उन्होंने बनाई एक जियो नाम की कंपनी। जियो नाम की कंपनी बनाते ही उन्होंने डेटा फ्री देना शुरू कर दिया। अब एयरटेल के पास तो इतना पैसा नहीं था। एयरटेल, वोडाफोन और ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये सारी डगमगाने लगी। लास्ट में हुआ कुछ यूं भी, आइडिया और वोडाफोन को तो आपस में मिलना भी पड़ा, अदरवाइज तो मार्केट से बाहर ही हो जाती हो। ठीक है, तो जब ये कंपनीज जाइंट बन जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? छोटी कंपनीज को आगे नहीं बढ़ने देती। नंबर 1 गूगल देखो, तुम्हें लगता है किसी और सर्च इंजन को पनपने देगा कभी गूगल? फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, वो तो इंडिया के अंदर टिकटॉक बंद हो गया, न्यूज को भी खरीद लेता, वो उसको पता लग गया था बहुत मोटा पैसा बनने वाला है यहां से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंपनीज है ना, प्राइवेट कंपनी, पैसा कमा कमा के जाइंट बन जाती हैं, एंड दोज पीपल हु आर टैलेंटेड एंड टेक इनिशिएटिव और बेटर इनिशिएटिव्स, दे आर हसप्ड बाय देम और दे आर सप्रेस्ड बाय देम। उनको दबा दिया जाता है, या तो उनकी कंपनी को खरीद लेंगे या उनको नुकसान पहुंचा देंगे। और देखो उसके आगे, ये जो कंट्रीज है जैसे चाइना, उसके अंदर रूल है, उसके अंदर रूल है कि अगर तुमने कुछ गलती करी तो सरकार बोल देगी देश खाली करो, निकल जाओ यहां से। लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारे जो लॉज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, वो है लैक्स। लैक्स का मतलब है लचीली। तो अभी देखो किसी ने कोई प्रॉब्लम कर दी तो पहले कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी रीपिटिशन कर सकते हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनी अगर कुछ गलत कर भी दिया तो इंडिया के अंदर होने वाला क्या है? बहुत समय लग जाएगा न्याय मिलने में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड राइट नाउ वी डोंट हैव। अब तुम देखो रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो देखो यहां पर अगर सर ना हूं, अगर मैं ना हूं, तो तुम क्या करोगे? तुम अपने मजे से बातें करने लग जाओगे हिंदी, यू विल टॉक। अब थोड़ी देर के बाद तुम बताओगे थोड़ी और बदतमीजी बता रहा, ओके तुम्हारे पास चप्पलें भी हैं, गॉट इट? हैव यू अंडरस्टूड? आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं यहां हूं तो सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा करता है, इफ समबडी ट्राइज, तो मैं कहूंगा आप घर जा सकते हो, यू कैन गो योर होम। ये बात समझ में? तो ये जो सरकार होती है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, नजर रखती हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अभी इंडिया में ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? रियल एस्टेट सेक्टर को देखो ना तुम। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर किसी ने फ्लैट लिया था 18 साल पहले, आज तक उसको फ्लैट नहीं मिला। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी अपने फ्लैट लेने में लगा दी, लेकिन आज तक उसको फ्लैट नहीं मिला। वो लोग रोड पर क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बट फिर भी उनको क्या नहीं मिल रहा? उनको भाई घर नहीं मिल पा रहा। तुम देखो हॉस्पिटल में एक जो आम इंजेक्शन होता है, जो 10 रुपए का मार्केट में आपको मिल जाएगा, इट इज सोल्ड of 100 or 200 rupees, which is 10 or 20 times more than the real price. कुछ कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही सरकार। तो आई बात समझ में? किस बात का पैसा लूटा जा रहा है? ये स्कूल्स में जाओ, 20,000 रुपए महीने ले लेते हैं। ऐसा क्या पढ़ा लेते हैं? मतलब 20,000 रुपए लेते एक महीने का, ऐसा क्या होता है वहां पर? तो कहने का मतलब देखो, सरकार मतलब लोगों की पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, बट गवर्नमेंट डोंट हैव रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू चेक आउट ऑल दीज थिंग्स। इनको चेक करने के लिए उनके पास अथॉरिटीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर अगर प्राइवेट कंपनी आएंगे और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। वायलेशन ऑफ एम्प्लॉइज राइट्स। मतलब तुम कुछ ऐसा समझना, कोई मुझसे कह रहा है तुम्हें 8 घंटे काम करना है, अगर उसने बोल दिया तुम 9वें घंटे भी काम कर रहे हो, तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं मालिक से मना करूंगा, मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में कमी नहीं है लोग। अमेरिका में तो रूल है कि 8 घंटे के बाद अगर तुमने किसी को रोक लिया, अगर उसने कंप्लेन कर दी, तो मालिक को सरकार ढंग से बताती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसके राइट्स को वायलेट किया है, मतलब उसके अधिकार तुमने उसको नहीं दिए। लेकिन इंडिया में तुम देखो जा करके, ओवर टाइम करा लिया 1 महीने में 15 घंटे का, बोलते ठेकेदार भाग गया। होता ही कि भाई तो ठेकेदार ही भाग गया, मैं क्या करूं? अब कोई बंदा बेचारा कंस्ट्रक्शन वाला ऊपर काम कर रहा था, 10वीं मंजिल पर गिर गया, जाके सरकारी हॉस्पिटल में उसको लेटाए, मर गया, उसके बीवी बच्चे रह गए। हुआ कुछ? कैसे दे रहे प्राइवेट कंपनी को? जब इतनी इरेगुलरिटीज हैं अभी, तो फिर कैसे प्राइवेट को दे दे? हमें भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है कस्टमर्स कैन बी डिसीव्ड। इन्होंने क्या किया? फ्री में लो डेटा, फ्री में लो। अब देखो कितना महंगा दे रहे।
24 दिन का डेटा 219 रुपए में देंगे। महंगा कर रहे हैं डेटा तुम आई बात समझ में। तो ये क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि अपना अधिकार कर लेते हैं किसी एक चीज के ऊपर। MONOPOLY, मोनोपोली। मोनोपोली का मीन्स होता है कि देखो एक बार क्या हुआ कि लाखों कस्टमर्स दूसरी कंपनी के फट से किसके ग्राहक बन गए, जियो के ग्राहक बन गए। उसके बाद जियो ने और ग्राहक बनाए, फिर बाद में क्या बोला, अब मिलेगा 219। गॉट इट, आई बात समझ में। तो ये क्या कर सकते हैं, इससे दो चीजें की प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे आपके बल्लभगढ़ में एक बड़ा मॉल खोल दिया जाए, ठीक है, उसमें बड़े मॉल में कोई बंदा लेकर के आता है 1 लाख रुपए की नहाने की सोप, टोटल लाता है वो 10 कंपनियों के 10 लाख की सोप, तो कंपनी से सस्ते में देगी या नहीं देगी। लेकिन एक छोटा दुकानदार है, वो तो 10 ही सोप लाएगा एक बार में। तो क्या ये बड़ा प्लेयर इसको आउट नहीं कर देगा बिजनेस से? और जब इसको आउट कर देगा, तुम्हारे पास ऑप्शन कितने बचे, एक ही ऑप्शन बचा। तो क्या इसकी मोनोपोली हुई या नहीं हुई? अगर अब ये साबुन जो तुम्हें 12 रुपए में मिलना चाहिए, अगर 14 का बेचेगा, तुम कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो व्हाट प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन आल्सो बी एक्सप्लॉइटेड। लेट मी टेल यू अबाउट हाउ द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड। जस्ट अंडरस्टैंड। एक्चुअली में होता क्या है, बिजली बनती है कोयले से, ठीक है, बिजली बनती कोयले से, उसके लिए होती है माइंस। जो हमारी कोल माइंस होती हैं, उन कोल माइंस को भाई किया जाता है नीलाम, ठीक है। अब मैंने एक कोल माइन खरीदी और उसमें बोला मुझे 32,000 टन इसमें से कोयला निकालना है। आई हैव टू एक्सट्रैक्ट 32,000 कोल आउट ऑफ इट। लेकिन वहां पर ये ऑफिसर लगी हुई है, मुझे पता चल गया इसको पैसे की भूख बहुत है। मैंने कहा आप ले लो 5 करोड़ रुपए। इनको बड़ा अच्छा लगा 5 करोड़ रुपए, और मैंने कहा मुझे एक काम करना है। बोला क्या काम करना है? 42,000 टन कोयला निकालूंगा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 करोड़ मुझे दे दे, कि छोटे बहन भाई 1-1 करोड़ इनको भी दे दे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 20 करोड़ रुपए में 20,000 करोड़ रुपए का कोयला निकाल लिया। हो गया नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट नहीं हुआ? आगे बात समझ में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी मैं रोड बना के दूंगा तुम्हें, हाईवे बना के दूंगा। मैंने लगा दिया इस पर टोल। अरे हमें क्या पता कितने में रोड बना, कितना पैसा तुम ले रहे हो, कहां जा रहा है सारा, कोई है हमारे पास हिसाब? हो ना, हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी एक्सप्लॉइटेड हो सकते हैं और आप भी एक्सप्लॉइटेड हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपके प्रति जवाब देनी है, सरकार के प्रति जवाब दे वो। लेकिन इसको तो दे दिया उन्होंने 3 करोड़ रुपए, इन्होंने तो अपना बंगलो बना लिया सेक्टर 16 के अंदर। अब आप क्या कर सकते हो, आप घूमो। अब हैव यू अंडरस्टूड? आगे इतनी बातें समझ में नहीं आई। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड स्प्रेड करप्शन। ऐसे करप्शन भी फैलती है, इनको दे दिया, इनके छोटे बहन भाई को भी दे दिया, और कोई भी मैं नहीं करने दूंगा 50,000 इसको भी दे दो, कोई बात नहीं, हम तो 20,000 करोड़ कमा रहे हैं, कोई कम थोड़ी है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज टू गेट देयर वर्क डन, अपने काम को कराने के लिए बेटा दे गिव मनी टू द ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स को क्या देती हैं, वो ऑफिसर्स को काफी सारा पैसा दे देती है, ठीक है जी। इससे करप्शन बहुत ज्यादा फैलते हैं किसी भी देश के अंदर। चलो आगे की बातें करते हैं, लेट्स बिगिन इट। अभी ये शुरू होने वाला है। चलो उसके आगे लिखा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल नॉट सपोर्ट कॉमन मैन। अब इससे होता क्या है, अब देखो एक्चुअल में वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो सिर्फ एक कंपनी का नहीं है या इनका नहीं है, वो तो सबका है। अरे भगवान ने इंडिया में मुझे भी जन्म दिया है, तुम्हें भी जन्म दिया है, तो तुम मुझे बताओ उस कोयले में मेरा हिस्सा है नहीं है? तो एक्चुअल में होता क्या, ये जो ऑफिसर्स होते हैं पैसा लेने के बाद में आम लोगों की नहीं सुनते, फिर ये बिजनेसमैन की ही सुनते हैं। गॉट इट? चलो उसके बाद में देखते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स। देखो, लेस गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेटेड पीपल विल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है देयर शुड बी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। हाँ, अभी थोड़ा ही बचा है, बट देयर इज अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ओके, देयर इज अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, यू कैन टेक वाटर। इसके बाद वो फेडरेशन क्लास स्टार्ट करूंगा।
Those who are doing MBA, those who have done MBA, and those who want to do MBA, GD में पूछा गया है। जब आपकी बड़े बड़े कॉलेज के यूनिवर्सिटी की GD कराई जाती है बिफोर गिविंग द एडमिशन, मैं आपको बताता हूँ इवन इन द IIM ऑल्सो, उसके पहले ये पूछा जाता है, GD के अंदर ये पूछा गया है, शुड देयर बी प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया और नॉट, कि भारत में हो या ना हो, क्योंकि बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, और आप अगर MBA को ध्यान से देखो तो सारा प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करती है वो। ठीक है, शुड आई बिगिन? करो बिगिन, सांसें आने लगी। Let's begin. Less government jobs, educated people will completely dependent on the private sector. अगर भाई आप प्राइवेट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को कम करते जाओगे तो आपके जो नौजवान है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे किसके ऊपर? आपके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और थोड़ा इससे प्रॉब्लम होने वाली है। दे मिसयूज दिस फ्रीडम, और इंडस्ट्रीज इस फ्रीडम को क्या कर सकती है? मिसयूज कर सकती हैं। ठीक है, वो क्या कर सकती हैं? वो बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करा सकती हैं, ठीक है, अपने फेवर में करा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नो सिक्योरिटी ऑफ द जॉब मींस अनस्टेबिलिटी इन लाइफ एंड पीपल विल फील अनरेस्ट। एक मैं आपको बात बताता हूं, जब आपकी जिंदगी में ना जो आपका प्रोफेशन है, अगर वो आपको काफी डिस्टर्ब करता है, अगर वो आपको काफी परेशान करता है ना, तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप अपना काम पसंद करते हो, इफ यू लाइक योर वर्क and you are happy with your work, you feel happy all the time and you have a good personal life, you have a good personal life along with professional life. प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। देखा होगा टीचर्स की, मेनली टीचर्स की क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर ना कॉर्पोरेट हाउस जैसा प्रेशर नहीं होता, वो आराम से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। दे गो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कम बैक एट 2 o'clock, आफ्टर दैट प्रोवाइड ट्यूशन क्लासेस। वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं, वो काफी सारा समय होता है अपने बच्चों से बातें करने के लिए, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत क्लोज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट फील अनरेस्ट। उनके जीवन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, एंड they become successful to achieve a peaceful professional as well as personal life. अब जब प्राइवेट सेक्टर में क्या, तुमसे कोई भी गलती हो गई, किसी ने कोई थोड़ी पॉलिटिक्स चल दी, तो बस हो गया गड़बड़, जॉब भी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डर रहता है, पता नहीं यार कब जॉब चली जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के अपने फायदे भी। नेक्स्ट देखो, वेयर विल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गो हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर राइट नाउ? यार 10 करोड़ 12 करोड़ लोग अभी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं राइट नाउ। व्हाट विल हैपन विद दैट? उनके साथ क्या होगा? हालांकि आर्मी वगैरह प्राइवेट नहीं होती हैं, ये तो दिस इज फुलिश, ओके, ये तो सभी तक गवर्नमेंट रहने वाली है। लेकिन तुम जरा सोच के देखो, राइट नाउ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड मेनी प्रोफेशनल्स आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट। व्हाट विल हैपन विद देम? उनके साथ क्या होगा? वो रातों रात प्राइवेट कंपनियां क्या कहेंगी? उनसे कहा चलो भी खड़े हो और तुम फटाक से इस वाले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दो, बट दे आर नॉट टेक्निकली एफिशिएंट। वो तो इतने एफिशिएंट नहीं है,
दे विल नॉट कोप अप विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी क्या कहेगी, बाबा जाओ। उनके साथ में क्या होगा, उनकी तो जिंदगी में एक तरह से भूचाल आ जाएगा अगर ये होता है तो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा सोशल सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल सिक्योरिटी? मैं पहले भी बता चुका हूं। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है देश में जो समाज है उसको सिक्योर करना। अच्छा, समाज सिक्योर कैसे होता है? हेल्थ से, एजुकेशन से, प्रोटेक्शन से, ये सारी चीजें। अब तुम बताओ, राइट टू एजुकेशन, भारत सरकार ने कहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे मतलब कि फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास स्टूडेंट्स विल नॉट बी चार्ज्ड एनी फी, उनसे कोई फी नहीं ली जाएगी। तो अब तुम बताओ, इस तरह के प्रोग्राम चला पाएगी क्या सरकार? नहीं चला पाएगी। राइट टू फूड, सरकार ने कहा है कि सभी लोगों को क्या है, खाने का भी अधिकार है, आपको खाना भी दिया जाएगा। ऐसे प्रोग्राम चल पाएंगे क्या? वीमेन एम्पावरमेंट के लिए उज्ज्वला योजना लेकर के आए ताकि औरतों की आंखें खराब ना हो, तो किस तरह के प्रोग्राम आएंगे? नहीं, रुक जाएंगे ये बीच में ही। चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, तुम जरा सोच के देखो, पोलियो की ड्रॉप्स है, बच्चों का टीकाकरण है, मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू कैरी देम आउट, उनको सरकार क्या नहीं कर पाएगी, उनको सरकार कैरी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स, मतलब कि जो हमारी गरीबी है, अरे वो कैसे दूर होगी बताओ? अगर भाई गरीबी और दूर नहीं हो पाएगी ना, सरकार पैसा पुश करती है, पैसा भेजती है बहुत सारा गरीबों के लिए, वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा, तो गरीब गरीब ही रह जाएंगे। भाई इलिटरेसी कैसे दूर होगी? इलिटरेसी कैसे दूर होगी? आज की डेट में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, इतना पैसा खर्च करें, जब भी लोग पढ़ना नहीं चाहते, अगर ये सारी चीजें बंद होगी तो और भी ज्यादा हम पीछे चले जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर मोर देन 200 ईयर्स। उनकी ज्योग्राफिकली वो बिल्कुल अलग देश हैं, उनके वहां पर लोगों का ऑक्यूपेशन बिल्कुल अलग है, और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, तभी वहां पर प्राइवेटाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो पाया है। अब तुम्हें अगर इलेबोरेट करूंगा तो थोड़ी देर लग जाएगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो, अगर आप बात करते हो अमेरिका की, इफ यू टॉक अबाउट कनाडा, सो दीज कंट्रीज हैव गॉट हार्श वेदर। If I talk about Canada, it means more than 6 and 7 months there is a biting cold. इतना होता है कि आपको चुभता है, इतना कोल्ड होता है। If I talk about Germany, in winter season the sun sets at 2 o'clock, 2 बजे तो वहां पर आपका सूरज छुप जाता है। ओके, at 3 o'clock और at 4 o'clock there is a dark night, अंधेरी रात हो जाती है। बट इन द समर्स में क्या होता है, till 11 o'clock और till 12 o'clock there is no sunset, रात के 11 बजे तक, कोई 12 बजे तक होता है। तो वहां का जो वेदर है ना, वहां की जो रहने की कंडीशन है, उन चीजों ने उनको मजबूर किया था इनोवेटिव बनने पर, तभी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एशिया में नहीं यूरोप में आई थी। बहुत मैं इंपॉर्टेंट और गहरा फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें कि वहां पर खेती ज्यादा नहीं होती, वहां पर खाने पीने की ज्यादा चीजें नहीं उगती, तभी तो तुम बताओ वो सी फूड खाते हैं और हम अनाज खाते हैं। डू यू नो व्हाट इज द रीजन मेंटेन? बिकॉज आवर लैंड सपोर्ट्स अस। अरे हमारी जमीन हमको सपोर्ट करती है, बट देयर लैंड डिड नॉट सपोर्ट अस, सो दे स्टार्ट ईटिंग नॉनवेज, तभी तो वो नॉनवेज खाते हैं। तो उनकी जो हार्श वेदर कंडीशन है, बिकॉज ऑफ दैट, उसके चलते वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। आगे बात समझ में। और आज जो इलॉन मस्क की हम बात कर रहे हैं, वो आज का थोड़ी है, 200 साल से वो प्राइवेट चीजों को इसी तरह से सपोर्ट करते आ रही, तब वहां पर पहुंची। हम तो मात्र 30 साल से कर रहे हैं। 1991 के बाद हमने इस चीज को सपोर्ट करना शुरू किया। 1991 के बाद आज तुम देखो 200 साल और 30 साल को तुम कैसे बराबर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। यही कारण है कि वहां पर जो है प्राइवेटाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ पर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग किसान हैं, इनके यहाँ किसान नहीं है लोग, इनके यहाँ पर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लोग ज्यादा। इनके यहाँ पर तुम खेत दोगे तो तुम्हें नजर आएगी खेत ही खेत है। देखोगे घर, पहला घर 1 किलोमीटर पर, तीसरा मिलेगा तुम्हें 3 किलोमीटर के ऊपर। पॉपुलेशन इतनी कम है, तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है, इनकी शिक्षा अलग है, लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है, तभी वहां पर प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है। इंडिया में तो पॉपुलेशन ज्यादा है, वो भी गरीब है, ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग। ठीक है, सारे पॉइंट्स। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंडिया की तरह नहीं है, जो भी देश के लिए अच्छा होता है वो उसके बारे में सोचते हैं। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बस ऑपोज करना होता है, मतलब कि वो चाहे सही है चाहे गलत है, बस उसको ऑपोज करने वाले हैं। वो उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं।
there should not be there should not be interministerial clashes. इंटरमिनिस्ट्रियल क्या होते हैं? एक मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री के साथ में क्लैश नहीं होना चाहिए। अब तुम क्या देखते हो, पहले जी हमने क्या प्रोजेक्ट बनाना है, हमें 3 मिनिस्ट्री से पास कराना है। अब पहले मैं इससे कराऊंगा, फिर इससे कराऊंगा। अरे एक काम करो, मैंने यहाँ पर कागज दे दिए, मैंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, अब ये सरकार का काम है, तीनों से पास करा के मुझे दे दे। Have you understood? तो क्या होगा, इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। What do we call this? रेड टेपिज्म। There should not be रेड टेपिज्म। यहाँ पर रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। सिस्टम को इतना अच्छा बना दो कि आपस में मिनिस्ट्री लड़ने के बजाय कोऑपरेट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिटीजन चार्टर बिल शुड बी पास्ड मींस देयर शुड बी टाइम लिमिट फॉर ऑल द गवर्नमेंट टास्क्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सबमिशन ऑफ द नेसेसरी थिंग्स और द डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, समझा देता हूं। सिटीजन चार्टर बिल क्या होगा? सिटीजन चार्टर बिल ये होगा कि आप बल्लभगढ़ की तहसील के अंदर गए एंड देयर विल बी अ चार्ट, देयर विल बी अ चार्ट, ऑन द चार्ट द टाइम ऑफ द टास्क विल बी मेंशन्ड, उनका टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। सपोज टुडे आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर द राशन कार्ड, आफ्टर 5 days आई विल हैव टू गिव इट, I will have to, sorry, it will be have to given me, it will have to be given me within 15 days, 15 दिन में मुझे मिलना ही चाहिए। If it is not delivered to me, then the officers who make ration card will be fined। अगर 15 दिन में मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, अगर वो नहीं हो पाया तो जिन ऑफिसर्स का एक काम है मेरा राशन कार्ड बनाना, अब उनकी सैलरी कटनी शुरू हो जाएगी। अब तुम बताओ कैसे काम नहीं करेंगे ऑफिसर्स? भाग भाग के काम करेंगे। अब मुझे लाइसेंस बनवाना है, सो मैं जाऊंगा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर द लाइसेंस? ABCDEFG। I will do all the necessary I will do all the formalities or necessary formalities, and after the submission of my documents I will have to be given license within 20 days. If it is not given to me, then all the officers in the authority will be fined or their salary will be deducted। उनकी जो सैलरी उसको घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब तुम बताओ करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे फटाक से। कौन कह रहा है प्राइवेट को देना है? अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई है वो लेकर के आओ ना, तुम कहीं में पागल तो नहीं बना रहे ऐसा करके तुम। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ स्ट्रांग रिक्रूटमेंट एजेंसीज टू रिक्रूट एम्प्लॉइज फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर्स। अरे किसने कह दिया कि 6 साल में कोई एम्प्लॉय आएगा, 6 महीने में आएगा? अरे आप रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाओ ना, इतने सारे अनएम्प्लॉय लोग हैं, तुम आज एक निकालो 25 आगे खड़े हो जाएंगे। लो पेपर लेने वाले बनो ना तुम। अरे तुम में दम हो तो पेपर लो, इंटरव्यू लो, रातों रात कितने लड़के खड़े हो जाएंगे काम करने वाले। क्यों नहीं बनाते तुम यूपीएससी के जैसे इंस्टीट्यूशन? भाई क्या हमारे देश में आईएएस नहीं बन रहे, आईपीएस नहीं बन रहे, क्लर्क क्यों नहीं बन रहे? तुम हमें पागल बना रहे हो, तुम्हारा पेपर लेते हो, हमारी जेब से पैसा भरवाते हो, और तुम क्या कर रहे हो? उस सारे पैसों को कहीं कहीं पर यूज कर रहे हो। पेपर कराते हो, रद्द करा देते हो, पेपर कराते हो, रद्द करा देते हो। क्या है ये? कहां से आएगा क्लर्क? नहीं आएगा। ऐसे बोर्ड बनाओ जैसे रेलवे बोर्ड है, आईबीपीएस है, यूपीएससी है। अरे गेट का एग्जाम देता है बच्चा, गेट का एग्जाम देने के बाद में वो लग जाता है कहीं पर भी जाके इंजीनियर, विदेश ले जाता है उसको। हर साल दे रहा बच्चा पेपर, नहीं दे रहा? अरे हर साल पेपर कराओ तुम, लोगों को रिजर्व में रखो, छोड़ो लोगों को रिजर्व में रखो, उससे बोलो तुझे वेट करना पड़ेगा, जब तेरी बारी आएगी तो उठा लेंगे रातों रात। 2000 लड़के पास करके बैठे हुए हैं पेपर, 20 की जरूरत पड़ी, उठाओ 20 इसमें से लगा दो, अगले दिन वहां पर बैठा होगे। अरे वो एलिजिबल हो गए या नहीं हो गए? आईबीपीएस में क्या यही तो है, पेपर क्रैक करके बैठे, जहां पर वैकेंसी लिखेगी आईबीपीएस में कर रखा वहां पर लग जाता है। गेट भी यही तो होता है, जहां भी जरूरत होती है वहीं पर भेज देते हैं, गेट से इंजीनियर चुने जाते हैं, पता होगा। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाइए ना, आप हमें क्यों पागल बना रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अथॉरिटी शुड बी देयर टू मेक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अकाउंटेबल। टीचर का प्रमोशन तब होगा जब 20 बच्चों के 90% से ऊपर आएंगे, प्रमोशन तभी होगा। अगर बच्चे बहुत कमजोर है पढ़ाई में तो उनको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बना के हमको दो कि भाई इतने देखो, यहां पर जब मेरे स्कूल में बच्चा आया ये था फेल, ठीक है, आज मैंने इसको 3 महीने पढ़ाया, इसके 3 नंबर आने लगे, 2 नंबर आने लगे, भाई 0 को तो मैं 90% नहीं बनाया। तो पूरा अकाउंटिंग चाहिए हमें, पूरी एक लिस्ट बना करके रखो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने 0 वाले बच्चे को 33 नंबर तक पहुंचाया तो तुमने मेहनत करी है नहीं करी है? अगर 30 वाले को 60 पहुंचाया तो मेहनत करी है नहीं करी है? और 60 वाले को 90 पहुंचाया तो मेहनत हुई है। अब तुम्हारी प्रमोशन बन गई है। प्रमोशन सिर्फ उन्हीं की होगी, प्रमोशन उन्हीं को मिलेगी, दोज हु हैव डन वर्क,
जिन्होंने काम किया है दे विल बी गिवन प्रमोशन, उनको ही प्रमोशन दी जाएगी। अब बताओ काम होगा या नहीं होगा? काम होगा बिल्कुल। एक क्लर्क बंदा यहाँ बैठ के 6 घंटा 8 घंटे काम करेगा, वो बोलेगा मैंने आज तक एक दिन में 20-20 रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना के दिए। भाई तेरा प्रमोशन होगा, तू 8 घंटे आता, पंक्चुअलिटी से आता, मेहनत कर रहा है, करो इसका प्रमोशन। तो प्रमोशन कैसे होना चाहिए? प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस, ऑन वर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ऑडिटिंग शुड बी देयर, ऑडिटिंग होनी चाहिए, मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबका इंतजाम। मतलब तुम्हें हमने पैसा भेजा था, काम हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ, कहां गया पैसा? बता कहां है पैसा? अच्छा बैंक के अकाउंट की डिटेल निकालो, इसकी इसके रिश्तेदारों की डिटेल निकालो, कहीं उनको तो नहीं भेज रहा है ये पैसा। ऑडिटिंग, देयर शुड बी अ ऑनेस्ट ऑडिटिंग, बिल्कुल पाक साफ ऑडिटिंग हो, जिसमें कोई गलत है तो वो जेल में जाएगा और ईमानदार है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टॉप करप्शन, नेपोटिज्म, इनर्शिया ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? बैठे हुए हैं, कर देंगे तेरा काम, कोई बात नहीं, कौन सी जल्दी हो रही है तुझे, अब ये इसी काम नहीं कर रहा, समोसे लेने गया लड़का, अभी खराब कर दी तेरा काम, ठीक है। ये लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। कैमरा लगा दो, सीसीटीवी कैमरा, और कैसे वाला? कलर वाला, और जिसमें वॉइस भी रिकॉर्ड, देखो ऐसे बैठ रहेगा पूरे दिन तक। आई आपका काम करना, बताओ करता हूं। आई बात समझ में? क्यों नहीं लग रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगाओ पूरे के पूरे प्रेमिसेस के अंदर सीसीटीवी कैमरा, क्यों नहीं लगा रहे तुम? थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा रहे? 3rd डिग्री कैसे दोगे? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो वो अरे बड़ा इजी है। अब ये मेरा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूं, मैं लग गया एसडीएम, अरे भाई तो क्लर्क लगेगा मेरा, क्यों? मेरा तो राजा बच्चा है। गॉट इट? फिर इसका मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने ऑफिस में लगा लिया। अब इस भाई ने, इस भाई को तो पता है, इसको तो अपना भाई तो एसडीएम है, इसको बोला किसी ने कि एसडीएम से कंप्लेन कर दूंगा। क्यों? दोनों खाना शाम को साथ ही खाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, नेपोटिज्म बहुत है, भाई को भाई लगा रहा है, फूफा अपने भतीजे को लगा रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये सब चल रहा है। इस तरह से क्या लोग इनएफिशिएंट लोग आ रहे हैं। कैसे लोग आ रहे हैं? इनएफिशिएंट, जिनको काम आता ही नहीं है। और कंप्लेन करोगे किससे? उसका फूफा ही एसडीएम है यार, किससे कंप्लेन करोगे तुम? अच्छा, फिर उसका समधी उसके ऊपर भी बैठा हुआ है कि वो मेरा समधी है, कागजा वहां तक भी जा सकता है तू। तो नेपोटिज्म में ये भी खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद में इग्नोरेंस, पढ़े लिखे लोगों को लेकर के आओ सिस्टम। जिनको काम आता है दे विल विन द जॉब, और जिनको काम नहीं आता या तो सीखो, अदरवाइज यू विल बी किक्ड, बाहर जाओगे। जिनको काम आएगा, अब बैंक में बैठा हुआ एक बूढ़ा क्लर्क, कर रहा हूं, हो जाएगा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको निकाल दिया जाए, उसको दूसरा काम दो ना। अगर उसका कंप्यूटर तेज नहीं चल रहा तो बहुत काम है, पेपर वर्क करा लो उससे। लेकिन यहां वो बंदा बैठेगा जिसकी स्पीड है, जिसका जो फोटे है वही लेके आओ। हालांकि देखो मेरी स्टेटमेंट को गलत तरीके से मत लेना, बट आई एम सेइंग कि भाई आपको सिस्टम में एफिशिएंट लोग लाने पड़ेंगे, नहीं लाओगे तो लोग लाइनों में खड़े खड़े मर जाएंगे। ओके, दिस इज द होल प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद की बात करेंगे, ये खत्म, इट्स ओके, डन। Okay, there is a